الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العلي العظيم بلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى عز وجل في شأن حبيبه تعظيما وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ولبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الحمد للہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں محرم کا مبارک مہینہ عطا فرمایا اور اس مبارک مہینے میں ہمیں یوم عاشورہ کے روزے بھی عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمارے اس عاشورے کے روزے کو قبول فرمائے اور اس کی برکت سے، رحمت سے، فضل سے ہمارے تمام پچھلے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے اور نئے سال کی نئی مبارک زندگی ہمیں خوشحالی عطا فرمائے، تمام بلاؤں سے، بیماریوں سے اور وباؤں سے ہمیں، ہماری اولاد کو اور ہمارے خاندان کو محفوظ فرمائے، آمین۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، سوال کرو ان سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں علم عطا ہوا، ان کو تم لا تعلمون، جبکہ تم کو کوئی چیز کی جانکاری نہیں ہے یا معلوم ہونا چاہیے یا علم ہونا چاہیے، اس کے لیے تم اہل ذکر یعنی جانکاری رکھنے والوں سے سوال کرو، فصل سوال کرو۔ تو اس صورت میں دین سیکھتے ہیں اور دین سکھاتے بھی ہیں، جبکہ ان سے کوئی شکوک و شبہات یعنی اپنے ڈاؤٹس کلیئر کرتے ہیں۔ انسان خطا کار ہے، انسان نسیان سے بنا ہے اور انسان پر شیطان اور نفس کا جو غلبہ ہے یہ ہمیشہ انسان کو ہمیشہ بربادی کی طرف یا اللہ کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس واسطے دل میں طرح طرح کے شک شبہات اور ڈاؤٹس کلیئر کرتا ہے، ڈاؤٹس کریٹ کرتا ہے۔ تو اس کا علاج کیا ہے کہ جب تم کسی سے جانکاری رکھنے والوں سے ملو تو یہ ڈاؤٹس کلیئر کرانا، تاکہ تمہارے جو تمہارے رجحان ہے، تمہارا جو کنسنٹریشن ہے، اس میں تمہیں فل کنسنٹریشن ملے یا فل توجہ ملے۔ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیشہ ایک ایسا ڈاؤٹ کریٹ ہو جاتا ہے کہ اس سے ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ صحیح ہے، غلط ہے، یا ہمیں جو کرتے ہیں رائٹ ہے، رانگ ہے۔ تو اس صورت میں ہمارے جو عملیات ہے اس میں خرابی آتی ہے اور وہ قبول نہیں ہونے پاتے۔ اس وجہ سے تمام بزرگان دین اور اولیاء کرام کا یہ طریقہ رہا ہے کہ اپنے جو بھی فالوورز ہیں ان کو ہمیشہ ان کی شبہات اور شک و شبہات کو دور کرتے رہتے ہیں، تاکہ ان کا جو لائن آف تھنکنگ ہے، ان کا جو عمل کرنے کا طریقہ ہے وہ پاک ترین ہو جائے اور وہ قبولیت میں آ جائے۔ تو جیسے میں پہلے بتایا کہ شریعت پہلا قدم ہے، یعنی احکام الہی قرآن اور حدیث کے مطابق جو رولس اور ریگولیشنس ہے اس پر عمل کرنا، یہ شریعت ہے۔ طریقت نیکسٹ سٹیج ہے کہ جو ہم شریعت کے اعمال کرتے ہیں اس کو صحیح طریقے سے کرنا اور اس کو قبولیت کے درجے تک پہنچانا طریقت میں سکھایا جاتا ہے۔ اب طریقت میں شریعت کے جو اعمال ہم کرتے رہتے ہیں شریعت میں پہلے سٹیج میں، وہ قبول ہوتے یا نہیں ہوتے ڈاؤٹ فل ہے، اور اس میں ہم کو صحیح طریقے کرتے کی نہیں کرتے کی، اس سے ڈاؤٹ فل کیس۔ تو ہمیشہ شریعت کے پابند جو لوگ ہوتے ہیں، جیسا جماعت کے لوگ ہوتے ہیں، ہمیشہ نماز کے پابندی ہوتے ہیں، یہ سب ہوتے ہیں، لیکن جو عمل کرتے ہیں بس ان کی بدنی عملیات ہوتے ہیں، بدن سے عمل کرتے ہیں، یعنی جسمانی عمل ہے، اٹھک بیٹھک ہے، سب کچھ اٹھک بیٹھک سے ہوتا ہے،
सिमिलरली नमाज के साथ साथ रोजा भी ऐसा ही है और दूसरे अमलियात भी ऐसे हैं। लेकिन उस अमल में खुलूसियत पैदा करना, सही तरीके से करना, जिससे अल्लाह राजी हो, अल्लाह खुश हो, वैसा तरीका क्या है? क्योंकि जब हम अमल करते हैं ना, मतलब कि स्टार्टिंग में जब नमाज वगैरह पढ़ते हैं तो हम ना वसवसे आते हैं नफ्स की तरफ से, शैतान की तरफ से, हम ना डाइवर्शन करता है, डाइवर्ट करता रहता है। तो उसको दूर, अगर उसी इसमें तुम्हें नमाज पढ़ेंगे तो तुम्हारा नमाज में ध्यान नहीं रहेगा, इधर उधर भटकता रहेगा, तो तब तुम्हारी नमाज कबूल नहीं होती। तो उसको पाक करना, उसको सही करना, उसको रिफाइंड करना सिखाते हैं कौन? तरीकत में सिखाते हैं। ऐसी सूरत में क्या करना, ये सिखाते हैं कौन? जो अल्लाह वाले हैं, जो तरीकत के बुजुर्गान दीन है, उन लोग क्या करते हैं? अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको सिखाते हैं कि देखो तुम अमल तो करते हैं, लेकिन इसके अंदर तुम्हारे इसमें अंदर खराबी है, कबूलियत नहीं है। जैसे मैं पहले ही बताया हूँ एग्जाम्पल, 100 स्टूडेंट्स एग्जाम लिखते हैं लेकिन 100 पास नहीं होते, उसमें से चंद, बिल्कुल चंद मुख्तसर पास होते, अच्छे मार्कों से पास होते। इस वजह से कि वो खुलूस से सही तरीके से आंसर जो क्वेश्चन होता है उसके बराबर करते हैं। ऐसा अमल के भी शराइत है, कंडीशन है। वो कंडीशंस के मुताबिक तुम अमल करें तो तुम्हारे अमल कबूल होते हैं, नहीं तो नहीं होते। एग्जाम में भी ऐसा तुम जो क्वेश्चन है उसके बराबर लिखे तो तुम ना पास के मार्क आते, अच्छे मार्क आते। नहीं ऐसा वैसा लिखे तो तुम ना मार्क नहीं आते या फेल हो जाते। सेम केस इन दी इबादत में भी। तो इबादत के जो शराइत हैं, जो तरीके हैं, उसको सही तरीके से करने से जैसा पास करते एग्जाम में, वैसा हमारा अमल होना, पास होना या अल्लाह के पास कबूल होना, ये बड़ा दर्जा है। वो दर्जा हासिल करने के लिए तरीकत का रास्ता इस्तेमाल करते हैं। अब तरीकत में आ गए, अमल तुम सही तरीके से करते हैं, जुलूस से करते हैं, और तुम जो अमल करते हैं तुम खुद समझ के करते हैं, और ये जानते हैं कि अल्लाह सुनता है, देखता है, इस वजह से हम सही तरीके से कंसंट्रेशन करते हैं। तो ये पहले अमल से भी इसका दर्जा बढ़ा है। तो इसमें भी डाइवर्शन आते हैं, इसमें आते हैं, लेकिन रिड्यूस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो ये एटलीस्ट सम पास मार्क मिलते हैं इसमें। अब पास मार्क से फिर हायर मार्क को जाना, अच्छा हायर लेवल में जाना है, तो शरीयत से तरीकत में तुम जब लगन से इबादत करोगे, तरीका करेक्ट तरीके के सिखाने हुए से करोगे, तो उसके बाद तुम्हें एक लेवल मिलता है, उसको कहते हैं मारिफत। मारिफत क्या है? जानकारी। हम किसकी इबादत करते हैं, कौन हमारा खुदा है, वो हमको पता चलता है। जब हम खुलूस से इबादत करते हैं तो अल्लाह हमारे लिए वो रास्ता होता है जिससे हमको अल्लाह की जानकारी हासिल होती है, और हमको मालूम होता है कि हम जिसकी इबादत करते हैं वो हमारा महबूद हकीकी है। हमारा महबूद देखता है, सुनता है, और हमारी बातों को सुनकर हमारी बातों को, हमारी दुआओं को कबूल करता है। ये जानकारी हासिल होती है थर्ड लेवल में, मारिफत के लेवल में। अब जिसमें भी अगर तुम सुलूस से करते रहे तो एक लेवल पहुंचते हैं जिसको कहते हैं हकीकत। हकीकत की नमाज। अब हकीकत की नमाज में या रोजे में, हकीकत हज में, हकीकत के ज़कात देने में, जितने भी इबादतें हैं, ये हकीकत के लेवल में क्या होता है तो हमको रियलाइज हो जाता कि जो कुछ हमने किया है, जो कुछ हम करते रहे हैं इबादत में, हकीकत में ये यही है, यही रब्बुल आलमीन है, उसी के लिए हमने इबादत की है। और ये हमारी इबादत का ये लाखों इसको देखता है, हमको मालूम होता है, हकीकत पता चलता है कि ये सही सही हक है। समझे? अब इसका एक छोटा सा दुनियावी एग्जाम्पल मैं देता हूँ। किसी ने कहा कि तुमको खजाना है, किसी ने कहा कि फलां जगह खजाना है। खजाना की जानकारी हो गई, खजाना हासिल करने के लिए कोशिश करते हैं। खजाना हासिल करने के लिए हम कोशिश करते हैं, वो है शरीयत। अब खजाने तक पहुंच गए, अब उसको खोदते हैं, खोद को उसको उसको निकालने की कोशिश करते हैं। उसको सही तरीके से खोदना है, क्योंकि खत्म ना हो जाए या खराब ना हो जाए बोल के, जो तरीके से करेक्ट तरीके से हम करते हैं, जो हासिल करने के लिए खजाना, वो है तरीका। अब खजाना तो मिल गया, खजाना तुम्हारे हाथ को आ गया,
تو معلوم ہوا کہ واقعی خزانہ تھا. ہمیں کوشش کرے اور ہم نے پا لیا، خزانے کو پا لیا. یہ ہے معرفت، یہ ہے معرفت. خزانہ تم نے پا لیا ہے. اب خزانے میں کیا ہے؟ کھول کو دیکھے، بے انتہا اشرفیاں ہیں، موتیاں ہیں، یہ ہے یہ ہے. اور واہ، یہ خزانہ کیا، اس کو کہتے ہیں حقیقت. بات سمجھ میں آئی؟ ہاں. تو ایگزامپل سے تم نے سمجھانا کا مقصد یہ ہے کہ ہم جس کی جستجو کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، وہ ہے شریعت. ہم جستجو کرتے ہیں لیکن صحیح جستجو کرتے نہیں معلوم، صحیح وضو نہیں کرتے، صحیح نماز نہیں پڑھتے. اس کو صحیح کرنے میں ہمیں کیا ہوتا ہے؟ ایک صحیح نماز کا مزہ ملتا ہے، یا ہم کو اس کی جو روشنی ہے وہ ملتی ہے، وہ ہے طریقت میں. اب طریقت میں آگے ہم جاتے 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 عبادت کرتے 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 ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ واقعی ہم نے جس کی عبادت کی وہ ہمارا رب سامنے ہے. معرفت میں جانکاری ہو گئی کہ وہ دیکھو کتنا پیارا رب ہے، کیسی حقیقت کیا رب ہے، اور ہماری دعوتوں کو سنتا ہے اور ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے. تب اس کو جانکاری ہوتی ہے کہ ہمارا رب ہے، ہمارا رب سنتا ہے، ہمارا رب دیکھتا ہے، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے. یہ معرفت کا لیول. جب ہماری جو معرفت سے ہم نے جو حاصل ہوا، جب ہم نہ پتا چل گیا اور ہم نہ پہنچ گیا جو کچھ ہم نے چاہا اللہ کے سے سب مل گیا، تو سمجھتے ہیں کہ واقعی حقیقت میں اللہ ہے. اللہ تعالیٰ نے میری مراد کو پوری کیا، اللہ تعالیٰ نے میری دعاؤں کو قبول کیا. جب تم کو دعا قبول ہونے کا جو ثمرہ ملتا ہے، جو پھل ملتا ہے، جو تم گفٹ ملتی ہے، تب پہچانتے ہیں کہ واقعی میرا اللہ ہے. حقیقت کے لیول کو پہنچ جائے. ایکچولی یہ آسان طریقے سے تم کو میں نے سمجھا دیا، سمجھے؟ تو اس کو سمجھ کر اگر تم عبادت کرو گے اور اس کو صحیح طریقے سے تم بات کرو گے، تو واقعی تم کو ایک ایسا لیول پہنچا دے گا اللہ، جس میں جا کر تم کو عبادت تمہاری حقیقت میں اللہ کی شان، اللہ کی آن اور اللہ کی تجلیات کا ظہور نظر آئے گا. سمجھے؟ خیر یہ بہت بڑا درجہ ہے. اس کو حاصل کرنے کے لیے طریقت میں پہلے حاصل ہونا، تو شریعت سے پہلے تم طریقت میں آ گئے الحمدللہ. طریقت میں آنے کے بعد تم کو طریقت میں ریفائن کرنے کے لیے تم کو کیا کیا گیا؟ ذکر دیا گیا، احکام دیے گئے، یا تم کو رولز دیے گئے، ریگولیشنز دیے گئے. قرآن کی تلاوت کرنا، درود شریف پڑھنا، ذکر کرنا چاہیے، اور نماز فرض کے بعد سنت کے بعد نفل بھی پڑھنا چاہیے. نفل کیا کیا نفل نماز پڑھنا وہ بھی سکھایا گیا. یہ سارے چیزیں تم کو اس بات سے سکھائے گئے کہ تمہاری شریعت کے اعمال میں ریفائنمنٹ آئے، تمہارے شریعت کے اعمال میں بہتری آئے. سمجھے نہیں؟ اب میں سمجھتا یہی ہوں کہ تم لوگ طریقت میں ہیں. اب طریقت میں آنے کے بعد، یہ عمل کرنے کے بعد تمہارے اندر کچھ چینجز آئیں گے، تمہارے اندر کچھ چینجز آئیں گے. تم نہ معلوم ہوگا کہ پہلے لیول سے ہمارے اس لیول میں ہمارے لیے بہت کچھ ڈفرنس ہے، بہت کچھ امپرومنٹ ہے. تو کیا امپرومنٹ ہے آج کی اس محفل میں ہمیں جاننا چاہیے. سمجھے؟ تو مجھے یہ کام کرو کہ اگر یعنی ایک ایک طریقے سے مجھے بتائیں گے تو میں پورا نوٹ کر کے پھر لاسٹ میں اس کا آنسر کیسا کرنا میں بتاتا ہوں. سمجھے؟ چلو بسم اللہ پہلے شروع کرو. طریقت میں آنے کے بعد تمہارے پورے اعمال کرتے ہیں، تمہیں ذکر کرتے ہیں، میں بولے ساتھ چلتے ہیں. چلنے کے بعد تم نے کیا چینجز نظر آئے تمہارے اندر، تمہارے لائف میں، وہ مجھے بتانا. کیونکہ تم لوگ پرسنلی آپ کو نہیں مل رہے، مجھے اب دوسرا راستہ نہیں ملا کہ آن لائن میں تمہارے سے دریافت کروں. چلو ایک ایک کر کے چلو. بسم اللہ. نمبر 1. مامو وہ دنیا کی ذرا حسد، خواہش، لوگوں کے ساتھ جلنا، لوگوں کے وہ جیلسی، وہ سبھی کم ہوگی مامو. اوکے، دیٹ از گڈ. نیکسٹ. دوسرا کیا چینجز نظر آئے؟ وہاں رہے تھے چیزیں معلوم ہوتے تھے مامو پہلے
नहीं, दूरी में भी रहना चाहिए ना, दूरी हो नजदीकी हो, तुम्हारा जो ये लेवल कम नहीं होना, खुश रहना या उससे आगे बढ़ना। ऐसा नहीं कि दूर हो गए तो पूरा चल जाना, ऐसा नहीं, जीरो नहीं होना। दूसरा क्या होगा, दुनिया से लगाव कम हो गया, सही है, ये तरीकत का पहला हल है। नेक्स्ट, इबादतों में, नमाजों में, इबादत करने में, जिक्र करने में कैसा मालूम हुआ तुमने? चेंजेस नजर आया है? वो बहुत अभी तुम्हारे शौक आता है। पर्सनालिटी में चेंज आएगा, आया? जी मामू। मामू और पर्सनालिटी में शौक चेंज आता आ गया। मामू। अच्छा, नेक्स्ट, दूसरे बोलो, दूसरे बोलो, दूसरे क्या है? एक पॉइंट तो सही वाइट है, दुनिया से रगबत कम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट। मामू दिल में हिम्मत आई है मामू, हिम्मत। हाँ। और जिक्र करने से एक लगाव हो गया है। हम्म। मिस हो गया तो एक परेशानी होती, जिक्र इनकम्प्लीट हो गया है। वो एक करेक्ट, परेशानी घबराहट की थी, अगर छूट गया तो। करेक्ट। नेक्स्ट हाँ पॉइंट, वेरी हिम्मत गुड। हाँ थी मामू। नेक्स्ट पॉइंट, करेक्ट है, 2 पॉइंट भी करेक्ट है। में परेशानी कुछ आया कुछ हुआ तो अल्लाह है और को एक बैक साइड एक सपोर्ट है मामू, वो देख लेगा कोई करके। तुमने एक सपोर्ट मिले ऐसा दिखता नहीं क्या? हाँ हाँ हो मामू। वेरी गुड, करेक्ट, करेक्ट। नेक्स्ट, दूसरे ही बोलो, तुम्हें बोलो, सही ना, तुम्हें बोलो, तुम्हें हजरत सीनियर हो तुम। हजरत ये एक जने म्हणजे जरा महीने पहले पूछे थे, प्राणिक हीलिंग कर को एक है, वो हमें कर सकते क्या कर को, म्हणजे उसके इल्म नहीं है ये ज्यादा। तो दुनिया आई की डोंट नो दुनिया है व्हाट इज भाई, दैट। पूछा सो सवाल का जवाब दो। मैं पूछा सो सवाल का जवाब दो, ये तुम्हारा जो पर्सनल मैटर है, बात बात करेंगे, पहले ये सवाल का जवाब दो, अच्छा, तुम्हारा तरीकत में आने के बाद तुम्हारे लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए। हाँ हजरत बहुत आए हजरत, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ये हुआ। मैं तो बोल भी दी ना अपने को, उससे बढ़ कर अभी क्या मैं बोलो होता। बोलो ताकि अभी लोगों को तो भी मालूम हो, उसके हाथ में ये कॉमन महफिल बुलाया ताकि लोगों को पता चले। उनको होता रहेगा, अच्छा, उन्हें जानते रहेंगे, बहुत लेकिन बोल नहीं पा बहुत रहे। फायदा बोलो हुआ, तुम बहुत क्या बोलो, अच्छा फायदा रहता क्या है। हो? बहुत बहुत सुकून होता। आप देश पढ़े अंग सब पढ़े तो बहुत तसल्ली होती, सुकून है। जिक्र जिक्र तो जिक्र हो जाती है सब, वो सब बात से सब अच्छा है हजरत। अल्हम्दुलिल्लाह उतने दूर तक वो अभी उतना पहुंची नहीं हो, इंशाल्लाह अल्लाह आपकी दुआ से उतने दूर तक आना। नहीं, बात में अब इबादत करती, इबादत में तुम लोग कुछ ज्यादा मजा मिल रहा है, नमाज पढ़ने के शौक हाँ आ रहा है, हजरत, ऐसा हाँ नहीं? हाँ हाँ, मैं बोली ना हाँ। दिल को सुकून होता, बहुत अच्छा रहता है वो पढ़े नहीं तो नहीं, पहले बेकरारी रहती है। नमाज में, हाँ, नमाज में सुस्ती होती थी, नमाज में पढ़ने को नमाज में सुस्ती होती थी। अब तुम लोग वो सुस्ती नजर नहीं आएंगी, नमाज नहीं पढ़े तो बेकरार हो जाएंगे। नमाज हाँ पढ़ना, हाँ, नमाज वो पढ़ने का। बेकरारी रहती है क्या भी चीज भी आप देते तो वो नहीं, दलाल खराब भी नहीं पड़े तो वो तड़प रहता है, क्या रे पढ़ी नहीं ना, कंप्लीट करना करेक्ट, ना, कंप्लीट करना ना कर। करेक्ट, करेक्ट। हाँ, सही। फातिमा, तुम्हें बोलो, तुमने क्या होता? फातिमा, ये कौन फातिमा है? हमारी फातिमा तो नहीं वो। कौन सी हो? चाइना के लेकिन तो नहीं, ये फातिमा नहीं क्या? अच्छा, कोई और बोलो। सबिया, तू बोल, तू बोलो, क्या हुआ तुम्हें? तरीकत में चलने के बाद तेजरा से आई ना, रोज ये करते हैं, तस्बीह पढ़ते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, क्या करते हैं, हेलो, क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम हाँ। जुनैद भाई। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुकून है। पहले पीस ऑफ माइंड है, क्या चीज को भी घबराता नहीं दिल, सुकून हम्म, है। जो भी जिक्र करते हैं इसमें सुकून आया है फर्स्ट ऑफ ऑल। बस हमें वो सभी काम करते हैं उसके बिफोर ही चला हम ना कहते भी एक मालूम गाइड करा करते, दलता एक गाइड कराते। ऐसा करा अच्छा, वो जान नहीं जाना अगर को अल्लाह वो हिदायत दे दलता वो एक हिदायत दे। अल्हम्दुलिल्लाह
اوके हिदायत ओके ओके अल्हम्दुलिल्लाह फातिमा बोलना मुझे चाहते क्या देवी? अस्सलाम तुम्हारा माइक वालेकुम ऑन हजरत, में उधर ऑन करने नहीं हुआ हजरत। जाते चलो फरहान बोलो क्या बोलो कैसा? मुझे बहुत फायदा हुआ। मुझे ऐसा मालूम होता कि पहले ख्वाब में जरा क्या तभी मालूम हो जाता हजरत मुझे। वेरी गुड क्या भी ऐसा उसके बाद है ना, ऐसा मालूम होता कि अ, आदमी आको मेरे सामने खड़ने बात करने डरे सर का, वैसा मुझे एक हिम्मत, वैसा एक वेरी गुड कॉन्फिडेंस आगा मुझे। वेरी गुड अल्हम्दुलिल्लाह आपके इसमें दुआया में सो भी। अब थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, वो हाँ जरा हाथ में जरा फोड़ा आजा को बहुत, उसमें जरा ये होगा सर, लेट भी जमी में दर्द अलग अच्छा फरहान है उसमें। हाँ ओके हजरत, दुआ करो हजरत। ओके हजरत। अभी क्या नो सूफिया तुम्हें बोलो सूफिया वालेकुम सलाम। मैं ना आप हमको दलाल खैरात पढ़ने के लिए बोले थे, and other advices have helped me a lot, though I don't know what is tariqat and all. I don't know all that. तरीकत में समझाया ना अभी क्या अभी इतना समझाया तरीकत किसे बोलते समझा ले तो था ना नहीं भाई इतना वो मालूम है, मतलब हमारे क्या भी चांसेस नहीं हो सब। मैं तो इतने सालों में आई डोंट नो, जस्ट आई रीड Namaz Quran from a very young age itself, and Allah helps me. I know Allah is with me. Itach and दलाइल खैरात पढ़ने से हमारे नबी का मोहब्बत हमारे दिल में इंक्रीज होता है। बेशक अच्छा 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 तुम्हें बोल फरजान ना बोल माँ तुम्हें क्या नजर क्या तुम्हें चेंजेस आए तुम्हारी इबादत में तो उसको फरजाना सुनती है नहीं फरजाना अच्छा देखो जितने भी पॉइंट्स बोले सब जने ये ऑलमोस्ट ओके करेक्ट है। पहले तो ये होना चाहिए कि तुम्हें जिक्र औस्कार नहीं करने में परेशानी होना परेशानी हाँ छोटे छोड़ने से डर डर लगा जल्दी जल्दी पढ़ना मैं छोड़ा ले बोल पाऊंगा दैट इज एक्चुअली वेरी गुड। सेकेंड तुम ना पढ़ने बाद में सुकून सा मिलेगा। नंबर थर्ड हाँ हजरत बताओ। तुम ना गाइडेंस मिलेगा मतलब कि अब क्या करना क्या नहीं करना कब करना नहीं करना ये जरा गाइडेंस बैकग्राउंड में मिलते रहता तुमने समझे। फोर्थ को क्या करते हो खुद पॉइंट नोट करते हैं कि नहीं करते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या करते हो तुम्हारी पर्सनालिटी में डेवलपमेंट आएगा कैरेक्टर में डेवलपमेंट आएगा। पहले जो गुस्सा रहेगा जरा कम होगा पहले जैसा कैरेक्टर में जो बैड कैरेक्टर्स थे जरा कम होने को जाएंगे पहले जैसा वो लोगों के बारे में सोचना ये करना कम हो जा रहेगा। मतलब कि जितने बैड कैरेक्टर्स पहले थे तुम्हारे अंदर वो रिफाइंड होने को जाएंगे कम होने को जाएंगे या कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाएंगे। ये तुम्हारे लिए नेक्स्ट पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट क्या कहते हो तुम्हें जहां भी जाएंगे तुम्हारी पर्सनालिटी सबके सामने हावी रहेगी सभी तुम्हारा देख को एक रोप पैदा होगा तुम्हारे से लोग देख के डरेंगे या तुम्हारा जो पर्सनालिटी है वहां देख के तुम्हारा एक रोप रहेगा सारे अजमेर में तुम्हारा देखने में सब जगह पारवे रहेगा समझे। ये भी एक इसके जो सम्राट है या इसका जो तुम्हारे जिक्र अस्कार का ये सब इफेक्ट होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि तुम्हारे जो अहवाल है लाइक पर्सनल मैटर्स में ही तुम ना जितने भी तकलीफा परेशानी पहले आते थे घाबरे हो जाते थे वो घाबरापन अब नहीं रहेंगे। अब ना तुम ना एक हिम्मत रहेंगी कि कोई है हम ना देख लेंगे अल्लाह है अल्लाह के रसूल है हमारे लिए दुआ करने वाले हैं। तो ये जो बैकग्राउंड सपोर्ट है और जो बैकग्राउंड जो तुम ना एक हिम्मत है ये जिक्र अस्कार का बहुत बड़ा तुम ना फल है समझे। तो इसी तरह से तुम्हारे दिल में एक किस्म की रोशनी पैदा होगी और क्लैरिटी मिलेगी क्या चीज में भी ये क्या वो क्या को नहीं रहेगा ये क्लियर को मालूम होगा। क्लैरिटी एक चीज में तुम ना पहले जो नहीं थी अब तुम्हें क्लैरिटी मालूम होगी कि ये काम में सही है ये काम गलत है। ये क्लैरिटी पहले नहीं थी लेकिन अब तुम ना जानने लग जाएगा
ये भी इसका एक समरा है, ये भी इसका इफेक्ट है। ऐसा बहुत सारे इफेक्ट होते हैं। तो ये चेंजेस आना तुम्हारे लिए तरक्की का एक एक इंडिकेशन है। तरीकत में तुम्हें आ गए, अब तरीकत में तुम्हें कुछ हासिल हो रहा है, ये आपको तुम्हारा एक सेटिस्फेक्शन है। और इससे क्या मालूम होता है तो हमें और अच्छा तरक्की करे तो और आगे बढ़ेंगे। करेक्ट इज द हाँ जी बराबर बेशक। करेक्ट इज हाँ द हजरत, मालूम होता हजरत। नहीं नहीं, अभी तुम्हें अभी खुलूस के साथ करे तो और ज्यादा तरक्की मिलेगी। कि तुमने दिल में अब आगा नहीं हो, इरादा आगा नहीं हाँ हाँ हजरत, ज्यादा हाँ कोशिश करे तो इतना हासिल हुआ नाम ना, अभी ज्यादा हासिल होगा तुमने। हाँ हजरत, हाँ आपको बोलते हाँ हैं हजरत। तो इसको कहते हैं मुजाहिदे में दिलचस्पी, मुजाहिदे में तुमना इंटरेस्ट पैदा होना। ये एक इंडिकेशन क्या है बोले तो इसके साथ तुमना तरक्की के रास्ते खुलते जाएंगे। प्रोवाइडेड कंडीशन क्या कहते हो, कंटिन्यूअस करते रहना है साथ। तुम्हें क्या करना, कंटिन्यूअस। ये जैसा आप पहले करते थे कि अभी अच्छा रिफाइन कर दो, अभी अच्छा कंसंट्रेशन के साथ, अभी खुलूस के साथ करते जाएंगे तो नेक्स्ट दर्जा फिर आना, नेक्स्ट फिर लेवल पर आना। इंशाल्लाह तो वैसा फिर रिफाइन करें तो अभी इंशाल्लाह। दूसरा दर्जा आना। ये दूसरे दर्जे 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 जाते 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 मारिफत तक पहुंच गए। मारिफत से पहुंचते क्या हकीकत। बात इंशाल्लाह समझ में आई? हजरत, आपकी दुआ से हाँ, हजरत। तो तुम्हारे लिए क्या है कि मैं ओपन ही करके दिया हूँ। नाउ यू आर ओपन। अब ओपनिंग में तुमने क्या करना, कंडीशन क्या है, और ज्यादा कोशिश करना चाहिए, और ज्यादा खुलूस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ, दिल लगा को अभी पढ़ना, अभी ज्यादा बात करना, अभी ज्यादा जिक्र करना, खुशी से करना। खुशी से तुम्हें जितना बात करेंगे कि और तरक्की हो। इंशाल्लाह तुम्हारी जबान से जो निकलेगा हो जाएगा। तुम्हें जिससे दुआ करेंगे वो हो जाएगा। तुम्हारी दुआ पूरी कबूल हो जाएगी। इंशाल्लाह समझे? इंशाल्लाह तुम्हारे एक इंशाल्लाह। बार में सब दिन हकीकत मालूम हो जाएंगी। इन्हें कौन को मालूम हो जाएगा। ये सब नेक्स्ट दर्जे नेक्स्ट दर्जे नेक्स्ट दर्जे डाले करेंगे। तो ये सारी चीजें हासिल होते हैं तरीकत के मंजिल पार करने के बाद। तो तरीकत में रहने के साथ हमें क्या करना, ज्यादा कोशिश करके, ज्यादा लगन हाँ के साथ, ज्यादा मोहब्बत के साथ अपने जो भी अमल हमारा हम जो अहकाम बताए गए हैं उस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह जरूर तुमने तरक्की होगी। इंशाल्लाह। यही हमारे लिए इंशाल्लाह। जिंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट है हाँ कि हम दुनिया में आए, इस्लाम में थे। अपने घर बार तो अलग है, दुनियावी चीज है, दुनियावी जो फराइज है उसको अदा करें, लेकिन अल्लाह के रास्ते में जो जद्दोजहद करे हमें, यही हमारे लिए आखिरत का सौदा है। यही हमारे लिए आखिरत का दर्जा हासिल करने का जरिया है। इस वास्ते फरमाते हैं कि दुनिया आखिरत की खेती है। जिस तरह से तुम यहाँ पे बोओगे वहां पे फल पाओगे। इसका मतलब यही है कि जिस तरह तुम इबादत यहाँ खुलूस के साथ सही तरीके से करेंगे तो अल्लाह ताला इसका जिसकी जो जगह है जन्नत के आला से आला दर्जा देगा। आमीन। बात समझ में आई? तो इस जी वजह हाँ से हाँ। मोस्ट ऑफ द तरीक़त में रहने वाले औलिया कराम बुजुर्गान दीन का मकसद यही रहा है कि शरीयत तो है लेकिन शरीयत को सही तरीके से करा के इनके लिए जन्नत की आला दर्जात हासिल कराना, आखिरत इनकी संवारना, आखिरत में इनको पहले बेहतरीन दर्जा दिलाना। यही तमाम औलिया कराम का तरीक़त के बुजुर्गों का मेन एम और मकसद रहा है, होता है, रहेगा। इनके लिए हाँ दुनियावी मकसद का कोई सरोकार नहीं। अब तुम ना दुनिया में प्रॉब्लम आया, वो प्रॉब्लम, वो तो उनके लिए कुछ भी नहीं है। उनके लिए कुछ भी नहीं है। उनके लिए कंसंट्रेशन क्या है, इसी तरह भी अपने फॉलोअर्स को अच्छी तरीके से इबादत करवा कर, उनको अच्छे तरीके से उनको इबादतों में खुलूस पैदा करा के उनको आखिरत के दर्जात में उनको तरक्की दिलाना है और दुनिया की जो भी बुराइयां हैं उनसे दूर कराना। दुनिया के जो ख्वाहिशात है, दुनिया के जो भी उनको कशिश है, उससे हटाकर अल्लाह की तरफ कशिश, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत, दीन की मोहब्बत दिल में डालकर उनको आखिरत में पूरा अजर हासिल कराना इनका एम और मकसद है।
अल्हम्दुलिल्लाह यही हजरत, हमारा आपके बयान सुनको, आपके बातें सब सुनको अहलुल बैत के लिए भी मोहब्बत बढ़ गई है और औलिया अल्लाह सुफियान करम के लिए भी मोहब्बत बढ़ गई हमारे दिला में। अल्हम्दुलिल्लाह दुआ होना अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस तो मैं मकसद बताने का आज की महफिल में यही है कि तुम जिस लाइन में हो इससे डिसअपॉइंट मत हो जाओ। लोग क्या क्या की बोलेंगे उसकी तरफ ध्यान मत दो, इस पर कंसंट्रेशन करो, क्योंकि तुम्हें अच्छा पता चल हजरत, गया कि पुराने से भी ये हाल हमारा अच्छा है। अग्री? हाँ सब अग्री अग्री हजरत, करते हैं? हाँ तो हजरत, पहले से भी पहले हमारा हाल अब सुधर गया, नहीं जी क्या? हजरत, जी तो पहले से भी हाल अब सुधर गया तो मतलब क्या? ये सही तरीका है, ये हाँ, सही लाइन है, ये सही हमारे लिए रास्ता है। अगर इसी रास्ते में और सही तरीके से हम करेंगे और ज्यादा तरक्की पाएंगे। नहीं, जैसा इंशाल्लाह दुनिया के इंशाल्लाह। काम में क्या करते हैं, हमें पहले तरक्की करे तो एक होटल खोलते, एक होटल से अभी अच्छा तरक्की करके दिल लगा के होटल में हमें अभी फुल बिजनेस करे तो और एक होटल करते, तरक्की होती नहीं। जी बेशक हाँ, जैसा दुनिया में तरक्की तुम्हारी कोशिश पर होती, तुम्हारे कोशिशों पर होती, तुम्हारे स्ट्रगल पर होती, इसी तरह दीन का भी यही मामला। दीन में भी हाँ, तुम्हें कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे और दिल लगाकर और तरीके से और अच्छे दिल लगाकर अल्लाह को, अल्लाह को, रसूल को राजी करने के लिए खुशी से तुम्हें इबादत करेंगे और इबादतों में कसरत करेंगे। इंपॉर्टेंट क्या कहते हो? कसरत करना। पहले खाली फर्ज नमाजा पढ़ते थे, छोड़ाते थे, और फर्ज के साथ सुन्नत भी पढ़ते हैं हमें, नफिल भी पढ़ते हैं हमें, जिक्र के लिए बैठ जाते, दलाल खैर दरूद शरीफ पढ़ते रहते, एक्स्ट्रा होगा नहीं हमारा। तो व्हेन यू जी डू एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, दुनिया में भी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा काम करते हो, ज्यादा पैसा कमाते नहीं। ऐसा दीन में भी तुम्हें जब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा करेंगे, ज्यादा से ज्यादा करेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा तुम्हें नेकियां मिलेंगी, नेकियां मिलने से तुम्हारे दर्जात बढ़ेंगे, दर्जात बढ़ने से तुम्हें और अल्लाह की कुर्बत हासिल होगी, अल्लाह के पास बहुत बड़े दर्जे हासिल होंगे। वेरी सिंपल मेथड है, इसमें क्या भी घबराने की जरूरत नहीं, कौन भी क्या भी डरा तो डरने की जरूरत नहीं। हमना दीन का रास्ता मिल गया, बा सही तरीका मालूम होगा, पहले से भी हाल बेहतर होगा। अभी मैं अच्छा करी तो अभी मुझे अच्छा मार्का मिलेंगे बोलते नहीं, मैं अभी अच्छा पढ़ी तो मैं 60 लेती थी, अब मैं 70 लूंगी मार्क बोलते, अभी अच्छा पढ़ी तो मैं 80 लूंगी बोलते, अभी अच्छा पढ़ी तो मैं 90 100 भी लूंगी बोलते नहीं। दुनिया